Enchanté 4 leçons 4. Mon dernier weekend. So my last weekend. Let's begin. Dans la cafétéria de l'école, so in the school cafeteria, les trois amis, Marie, Pauline et François, discutent de leur dernier weekend. So they're discussing about their last weekend. What are they talking of? Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Pourquoi? So Marie is asking that you're looking very happy today. What has happened? So François says, moi, j'ai passé un week-end magnifique. Mes parents et moi, nous sommes allés à la plage pour faire tout ce que je veux. तो वो कहता है कि I spent a magnificent weekend. My parents and we went to the beach and we did all that I wanted to do. C'est formidable! Et moi, j'ai fait beaucoup de shopping avec maman. So Marie कहती है, wow, that's amazing! I too did a lot of shopping with my mom. Pauline says, très bien, qu'est-ce que tu as acheté? So, what all did you buy? J'ai pris un manteau gris, un chapeau noir et une chemise rouge. Et toi, Pauline, qu'est-ce que tu as fait? तो मैंने तो लिया एक ग्रे कोट, एक ब्लैक हैट और एक रेड शर्ट. And you, Pauline, what did you do on the weekend? J'ai rendu visite à mes grands-parents à la campagne. So I visited my grandparents in the countryside. Tu as une grande famille, n'est-ce pas? So you have a big family, right? Oui, bien sûr. Ma famille est aussi très gentille. J'ai beaucoup joué avec mes cousins là-bas. Yeah, of course. And my family is also very nice. I played a lot with my cousins there. Un autre ami, Denny, rejoint les trois amis. So, एक और फ्रेंड डेनिस उन तीनों को ज्वाइन करता है. Salut Denny, tu es en retard. Pourquoi? So, hi Dennis, you're late. Why? J'ai été chez moi avec mon cousin Jean. Nous avons décoré la maison. So I was at home, like with my cousin Jean. We were decorating the house. Pourquoi? Pour quelle occasion? Like, why? For what occasion? Ah, c'est mon anniversaire demain. It's my birthday tomorrow. So अब birthday है, invite भी किया होगा और friends ने मिलके party भी की होगी, right? So what is happening next now? Dennis is sending an email. Email about what? Maybe he's telling about his birthday party to someone. Let's find out. He has written this email to Mark. Maybe some of his friends. Let's read what he wrote. Salut! Comment ça va? Hi, how are you? Aujourd'hui, je vais rester dans ma chambre car je suis très fatiguée. So today I'm resting in my room because I'm very tired. Hier means yesterday, j'ai fêté mon anniversaire avec tous mes amis. So I celebrated my birthday with all my friends. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Marie a apporté une montre pour moi et Pierre et Jean m'ont donné des jeux vidéo. Sophie a offert un veston bleu et mes parents, ils ont offert un vélo. Quelle surprise! So you see a list of gifts. मैरी ने उसको रिस्ट वॉच दी, पियर और जीन ने वीडियो गेम्स, सोफी ने उसे एक ब्लू जैकेट दिया और उसके पेरेंट्स ने एक बाइसिकल. So what a surprise! What a good day for him. Nous avons fait beaucoup de choses. We did a lot of things. Le matin, maman a fait des crêpes et l'après-midi, j'ai décoré la salle avec mes copains. So मम्मा ने सुबह पैनकेक्स बनाए एंड दोपहर में मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके घर को डेकोरेट किया. इवनिंग में मम्मा ने चॉकलेट केक बना के रखा एंड देन उस पे कैंडल्स लगाई. Moi, j'ai soufflé les bougies. I blew the candles
il coupe le gâteau and cut the cake. फिर हमने एक फिल्म देखी, nous avons écrit des messages amicaux and हमने friendly messages लिखे. J'ai mis un disque et nous avons beaucoup dansé. फिर मैंने गाना लगाया and हम बहुत डांस करा. C'était vraiment une soirée inoubliable. So it was truly an unforgettable birthday. Como ti fete ton anniversaire? How are you going to celebrate your birthday? Écris-moi, write me. Bisous, Dennis. Kisses from Dennis. So you see how beautifully he described his birthday party to his friend? It shows how excited and happy he had been throughout the day. So I think we've done enough of the comprehension. Let's move to la grammar. And इस लेसन में हम कौन सा ग्रामर टॉपिक करने वाले हैं? ऑब्जर्व करो, पता चल जाएगा. Moi, j'ai passé. Mes parents et moi, nous sommes allés. J'ai pris. J'ai été. Nous avons décoré. कुछ याद आ रहा है? Chanter throughout का सबसे dreaded topic, le passé composé. And that's what we're going to have a recap of in this lesson. Passé composé होता क्या है? It can be either the simple past or the present perfect tense. So it indicates a completed event in the past. So passé composé अगर मैं use कर रही हूँ मतलब वो event हो चुका है. J'ai fini mon travail. I have finished my work. So the action has a definite beginning and end. हमें पता है वो कब शुरू हुआ और कब खत्म. The setter a 11h. Il a joué avec ses amis. 7 से 11 वो खेल लिया भाई अपने दोस्तों के साथ. The action has been repeated a number of times in the past. तो उसको describe करने के लिए भी मैं passé composé use करती हूँ. Hier, nous avons mangé le poulet 3 fois. So yesterday I ate chicken thrice. Okay? So in all these contexts, I use passé composé. How do we form passé composé? It is formed by combining two elements. There's a helping verb, which can be either avoir or être. And we have the past participle of the regular or irregular verb, जो उस action को show करे. ठीक है, तो ये जेनरिक मीनिंग था पासे कंपोजे का और कैसे पासे कंपोजे का फॉर्मेशन होता है. ठीक, we'll be in this lesson focusing only on le passé composé avec avoir. पासे कंपोजे जो हम avoir as helping verb के साथ करते हैं. ठीक है, सो स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट, avoir in present, participe passé du verbe plus ऑप्शन. अब इससे पहले मैं इसको डिटेल में कराऊं, avoir की कॉन्जुगेशन रिवाइज कर ले. j'ai, tu as, il est là, nous avons, vous avez, ils, elles. Done? Let's move. अब avoir तो पता चल गया. पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते थे वो भी याद दिलाओ. Comment écrit-on le participe passé du verbe? So 3 तरह के verbs होते हैं हमारे, er ending, ir ending और re ending. er ending verbs का past participle बनाने के लिए I cut er and add an accented e. E पे एक q, l'accent aigu. A में I remove er and added an accented e. For all regular IR verbs, what did I do? I just simply removed the R and I got my past participle. Like for finir, it is fin. And for all regular RE ending verbs, what did I do? I removed I and instead added a U. So it became attendu. Okay? So मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज रेगुलर,
क्योंकि इन passive composé there are a lot of irregular verbs, ठीक है। सो ये रूल्स जो मैं करा रही हूँ पास्ट पार्टिसिपल बनाने के, ये सिर्फ रेगुलर वर्ब्स के साथ अप्लाई। चलिए एक बार प्रैक्टिस कर ले। You have to just give me the past participle of the following verbs। जो अभी प्रीवियस स्लाइड पे रूल्स करे उनको यूज करके इन वर्ब्स के आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो, वीडियो को पॉज, वापस आओ, वापस आके अपने आंसर्स को यहां से जरा मैच। अगर रूल सही से समझ आए होंगे तो आई डोंट थिंक आपने कोई गलती की होगी। तो चलिए अब हमें आबोआर की कॉन्जुगेशन भी याद आ गई है और अब हमें ये भी याद आ गया है कि रेगुलर वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो अब देखते हैं दोनों को साथ में रख के कि एक वर्ब की कॉन्जुगेशन पासे कंपोजे में कैसे होती। सो यहां मैंने एग्जांपल लिया है फिनीर का। सो स्टेप 1, यू फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल जो भी वर्ब आपको गिवन है। सो फिनीर का पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? IR एंडिंग वर्ब है तो रूल क्या था? रिमूव द आर। पास्ट पार्टिसिपल हुआ फिनी और इस पास्ट पार्टिसिपल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सो देखिए कैसे होगा। j'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini। ऐसे बदनाम कर रखा है कि पासे कंपोजे बहुत टफ होता है। क्या मुश्किल है भाई इसमें? आवर की कॉन्जुगेशन याद करो और बेसिक रूल याद करो, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं, लिख दो दोनों को साथ में। इससे आसान अब मैं तुम्हें क्या करूं, है ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ के क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स देखने। ये देखिए कुछ सेंटेंसेस। j'ai parlé beaucoup, I spoke a lot, tu as grossi, you have become fat, il a vendu la maison, he has sold the house, nous avons choisi cette voiture, we have chosen this car, ils ont habité à Paris, they have lived in Paris, le garçon a répondu au professeur, the boy replied to the teacher. So everywhere you see avoir की कॉन्जुगेशन है और हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स, राइट। चलिए अब इसी लॉजिक को याद रखते हुए इस एक्सरसाइज को करिए अटेम्प्ट। क्या करना है? ब्रैकेट वाली वर्ब को पासे कंपोजे में लिखना है। कैसे लिखोगे? लेट मी गिव यू अ डिफरेंट एग्जांपल। लेट्स से सेंटेंस है जैक डैश, क्या वर्ब? जैक डैश beaucoup hier एंड वर्ब है मेरी chanter। चलिए डिफरेंट कलर से समझाती हूँ। सो पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा ब्रैकेट वाली वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाना। chanter इज एन ER वर्ब, ER कट करके एक्सेंट वाला E मिल गया। अब पासे कंपोजे में लिखने के लिए दो एलिमेंट्स चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब और एक पास्ट पार्टिसिपल। अभी तो मेरे पास सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? avoir। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? जैक, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इलेल वाली कॉन्जुगेशन। avoir के साथ इलेल में क्या आता है? आ, तो यहाँ पर भी क्या लिखा? आ, और इसके साथ लगा दिया अपना पास्ट पार्टिसिपल। जैक आ chanté beaucoup hier, जैक sang a lot yesterday। अब समझ आ गया है ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो चलो वीडियो को करो पॉज एंड वंस यू आर डन कम बैक एंड अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ कर लो टैली। सो यहां तक आई होप कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगी, क्योंकि ना मैंने कोई इरेगुलर्स इंट्रोड्यूस किए ना कोई एक्सेप्शनल रूल्स, सब कुछ सीधा सीधा है, ठीक है। चलिए आप थोड़े रूल्स को इंट्रोड्यूस कर ले जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। अभी तक तो हमने रेगुलर वाले किए जिनमें बेसिक रूल फॉलो हो जाते।
अब हम वो वर्ब्स की लिस्ट देखेंगे जिनके पास्ट पार्टिसिपल उस तरीके से नहीं बनते जो रूल्स हमने सीखे। सो पहले वो लिस्ट ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल्स दैट एंड इन यू। फ्यू, वुल्यू, वू, द्यू, सू, रसू, क्रू, वेट और भी है, प्याद्यू, ल्यू, ब्यू। आह, लिस्ट काफी लंबी है ना, देखते जाओ अभी आगे आगे होता है क्या, ये तो शुरुआत थी। Next, we have the past participles that end in is, mis, pris, asis. A few past participles that end in ert, like you have here, uver, offer, dikuver. A few more that end in t, conduit, construit, dit, ekrit. And a few more that end in I, re, sweevi. बस मैम हो गया? नहीं, ये थोड़े, a few more. ये वाली पक्का लास्ट स्लाइड है। Some irregular past participles which have this orthoform. Orthoform means like एक particular ending इनमें नहीं आ रही, these are different, right? So I know the list was pretty long, and this is the part that makes passive composite tricky for many. यही पास्ट पार्टिसिपल देख के वो डर जाते हैं कि बस अब हमसे कुछ नहीं। आई नो टाइम लगेगा, पिक 5 verbs a day, 5-5 करके अगर ये पास्ट पार्टिसिपल करोगे 5 से 6 दिन में सारे याद हो जाए। और एक बार सारे याद हो गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना बाबा, फिर तो आराम से करो, ठीक है। अच्छा हाँ, अब कुछ कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स में अगर आपने नोट किया हो, मैंने इस तरह का स्टार मार्क लगाया था, इस पेज पे नहीं है, लेट्स सी प्रीवियस स्लाइड पे होंगे ये, ठीक है। ऐसे 3-4 और, राइट। अब मैंने क्यों किया था, क्योंकि ये वो इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जिनमें एत्र एज अ हेल्पिंग वर्ब लगता है। अरे इससे याद आया, एक दूसरा कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, क्योंकि ये इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल है एत्र इन सबके साथ आता है, नहीं, इनमें जहां जहां बस मैंने स्टार मार्क लगाया है सिर्फ उनके साथ एत्र आता है, बाकी ये सब के सब आबुआर के साथ ही कॉन्जुगेट होते हैं। करके दिखाओ। मैंने एक वर्ब ली लीर, सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं, यू हैव टू फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल एंड देन राइट द कॉन्जुगेशन विद हेल्पिंग। अब आइडियली अगर आप लीर का बनाते हैं तो क्या बनता, आर ई कट करके यू, क्या होना चाहिए था एल आई यू, बट ये तो नहीं है। एक्चुअल पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या है, एल यू, ल्यू। और इसको लिखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, avoir। तो चलो देखिए इसकी कॉन्जुगेशन, j'ai lu, tu as lu, il a lu, elle a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils, elles, on lu। आसान, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, आगे बढ़े फिर, चलिए। Le passé composé à la forme négative। अब हमने रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स भी सीख लिए, इरेगुलर। अब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे, और जब सेंटेंसेस बनाना शुरू होंगे तो नेगेशन भी आएगा ना। सो वी पुट न बिफोर एंड पा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो अगर कोई सेंटेंस जिसमें पासे कंपोजे है वहां मुझे नेगेशन लगानी है तो न पा किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। द पास्ट पार्टिसिपल रिमेन्स अनचेंज्ड। पास्ट पार्टिसिपल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा न पा के होने या ना होने से। जैसे इल आ फेल ऑफ हवाई, अब वर्ब कहाँ है मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये रही, न इससे पहले और पा इसके बाद। आंसर क्या बनेगा, इल न पा फेल ऑफ हवाई। j'ai mangé du chocolat, अब वर्ब ये रही, je n'ai pas mangé द chocolat। भावनाओं में आर्टिकल्स चेंज करना मत भूल जाना, बेसिक रूल्स याद रखना। आसान है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। चले एक और चीज देखें, la passé composé à la forme interrogative। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा,
we invert the places of the helping verb and subject. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट की जगह बदलते हैं. अब यहाँ दो वर्ब्स हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब का रेडिकल. तो हमें इन्वर्जन में कौन सी वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग. अगेन द पास्ट पार्टिसिपल रिमेन्स अनचेंज्ड. जैसे Vos avez mis les cahiers sur la table. सब्जेक्ट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रही. क्वेश्चन बनाने के लिए इन दोनों की जगह को हम कर देंगे इन्वर्ट. Avez-vous mis les cahiers sur la table? Have you kept the books on the table? Maria a dansé beaucoup. अब इसका कैसे होगा, आपको याद है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ इन्वर्जन होती है. मारिया इज अ गर्ल, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, एल. सो रफ में सेंटेंस बनता है Elle a dansé beaucoup. अगर किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि ये मैम क्या और क्यों कर रही है, प्लीज वॉच माय वीडियो ऑफ शांति थ्रुआ, जहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में सिखाया. ठीक है, एनीवे लेट्स गेट बैक. सो मारिया की जगह हम क्या यूज करेंगे, एल. तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा, आ एल का इन्वर्जन. सो दैट मीन्स माय आंसर विल बी Maria a-t-elle dansé beaucoup? So Maria, has she danced a lot? Okay. So now let's put them all together. अब मैं आपको दिखाऊंगी एक रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब की कॉन्जुगेशन इन पासे कंपोजिट इन affirmative, negative and interrogative. So see, affirmative में स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब. affirmative में स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल. नेगेटिव में न प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पा प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एंड इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. सो इन ऑल द थ्री केसेस पास्ट पार्टिसिपल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे अफर्मेटिव लिखो, नेगेटिव लिखो या इंटेरोगेटिव. और सेम ही रूल अप्लाई करेगा चाहे कोई वर्ब विद इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल ही क्यों ना. ठीक है, वो ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव. सो द ओनली बिग टास्क जो पासे कंपोजे को सही से करने के लिए आपको पूरा करना है इज लर्निंग द लिस्ट ऑफ इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स. क्योंकि एक बार वो हो गया तो पासे कंपोजे के टॉपिक पे आपने पहली फतेह. चलिए, टॉपिक खत्म करने से पहले एक्सरसाइज तो बनती है ना. अब आपके आगे है एक मिक्स्ड एक्सरसाइज ऑफ वर्ब्स विद रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स एज वेल एज इररेगुलर. अब आई नो आप बोलोगे मैम हमें थोड़ी आते, तो उसका भी सोल्यूशन है. बुक खोल लो, साथ साथ बुक की हेल्प लो. जो आपको अपनी लिस्ट में मिल जाए ये वाले वर्ब्स, उनका पास्ट पार्टिसिपल वहां से देख लो. जो उस लिस्ट में नहीं है, मतलब वो रेगुलर नेचर के हैं, उसमें वो वाले रूल्स फॉलो कर लो जो हमने सीखे हैं पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए. करना चाहो सब हो सकता है. ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज को करो ट्राई, वीडियो को करो पॉज, एंड जब लौट आओ आंसर्स को कर लेना टैली. ठीक है, आई नो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, शायद इधर उधर छोटी मोटी गलतियां हुई हो. सो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ द क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर्स वंस मोर, ताकि इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि यस यू आर मोर कॉन्फिडेंट नाउ, एक बार ये एक्सरसाइज ये अटेम्प्ट कर लेना. ठीक है, इसी के साथ पासे कंपोजे विद avoir का टॉपिक हुआ समाप्त. I'll meet you in the next lesson. Till then, au revoir. Keep learning, keep practicing, and keep revising. ठीक है? Bye bye.